Hello everyone, this is IB coaching classes. Bhagwan sir here, and in today's session we are going to start mathematics. The first lecture is of mathematics and it will be beneficial for you. It is beneficial for you if we start the paper 2 of mathematics. Okay, so in today's lecture we are going to start the first topic of your paper 2, that is differentiation. Okay, so this lecture is of 12th science. The subject is mathematics, and we are going to start the first topic of paper 2, that is differentiation. So all of you pay attention here. So in 11th standard, okay, so in 11th standard, the last topic of paper 2 was differentiation, and the basic concept about differentiation is already we have studied in 11th standard. Okay, or you studied in 11th standard the basic concept about differentiation. Now in 12th standard we will study the basic formulas of differentiation directly without proof, and using these formulas we are going to learn some techniques and some methods of finding differentiation of various other types of mathematical functions. For example, in our syllabus we have differentiation of composite functions. The next point is the differentiation of logarithmic function. The next bit is the differentiation of or derivatives of. You can also say differentiation instead of differentiation, the word derivative. Okay, derivatives of inverse trigonometric function, derivatives of inverse trigonometric function. Okay, derivatives of inverse trigonometric function. The next bit is derivatives of implicit function, derivatives of implicit function. Then we have parametric functions. Then we have higher order derivatives, the last bit of our chapter, higher order derivatives. So we have derivatives of composite function, logarithmic function, inverse trigonometric function, implicit parametric functions, and the last bit is higher order derivatives. Okay, the chapter is very lengthy, very vast. Each bit can be covered in 2 lectures, and in higher order derivatives there is a new topic is also introduced in your syllabus, and that new topic is nth order derivative. So this was the basic introductory part of your mathematics differentiation. Okay, you can take a screenshot of this image. तो आज हम डिफरेंशिएशन में पहले बेसिक फॉर्मूले देखेंगे. मैं उन फॉर्मूले को लिखने वाला हूं मीडियम स्पीड में,
तो आप मेरी स्पीड के अकॉर्डिंग उसको देखते वक्त ही लिख सकते हो, और लिखने से क्या होगा, आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन पे हम नहीं जा सकते, बिकॉज हमको पहले बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन चाहिए, बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर हमने बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन आज कर लिया, देन हमको 4 मेथड्स लगेंगे। एक तो u प्लस वी, दूसरा u माइनस वी, तीसरा u इंटू वी, एंड फोर्थ u बाई वी। इन 4 मेथड्स को, इन 4 बेसिक ऑपरेशंस को हमको डिफरेंशिएशन में देखना पड़ेगा। अगर हम ये कवर कर लेंगे तो हम ये कॉम्पोजिट फंक्शन पर जा सकते हैं। ये सभी हमारा बेसिक फॉर्मूले प्लस ये 4 थ्योरम हमको 11th साइंस के सिलेबस में अवेलेबल है। 11th साइंस का अगर हम मैथ्स पेपर 2 की बात करते हैं, तो मैथ्स पेपर 2 में ये चैप्टर नंबर 9 है। ओके, so this is the chapter number 9. This syllabus is given in chapter number 9 of your 11th syllabus, but we are going to revise this syllabus also very shortly. We are going to revise these formulae also. तो हम इनको रिवाइज करने पर ही हमको एक अच्छी लिंक मिलेगी, आपका बेसिक परफेक्ट होगा, और हम फिर उसके बाद पहला टॉपिक कंपोजिट फंक्शन पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूले को आज डिस्कस करेंगे। बेसिक फॉर्मूले आपको सिलेबस में विदाउट प्रूफ डायरेक्टली दिए हुए हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए, तो आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करने पड़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ इन फॉर्मूले को लिख लो। एक आप यहाँ पे एक पेज पर आप 2 कॉलम यहाँ पे बनाओ। लेफ्ट साइड आप y का कॉलम बनाओ और राइट साइड आप dy बाई dx का कॉलम बनाओ। ओके, जो स्टूडेंट्स मैथ्स में डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और अगर एक बार अच्छे से समझ आ गया तो बाद में बहुत इजी जाएगा। सॉरी। सो आप लेफ्ट साइड में y का वैल्यू लिखो x, और x का डेरिवेटिव आता है 1। देन y का फॉर्मूला अगर x रेस टू n रहेगा तो इसका डेरिवेटिव आता है n x रेस टू n माइनस 1। अगर y का डेरिवेटिव, y का फंक्शन अगर कांस्टेंट नंबर रहेगा तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आता है 0। ओके, देन y का फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्री है लाइक sin x, तो sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x। cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस sin x। tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x। cot x का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। sec x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसका है sec x into tan x। The standard derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. So these are the 6 trigonometric function, and we have discussed their derivatives. Now if function of x is e raised to x, अगर y का फंक्शन y इक्वल्स टू e raised to x रहेगा तो e raised to x का डेरिवेटिव सेम रहता है e raised to x, और अगर a raised to x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आता है a raised to x मल्टीप्लाइड बाय log a। ओके, ये दोनों फंक्शन आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले याद रखो। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x रहता है, a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x into log a है। इसमें ये जो a है ये कांस्टेंट नंबर है, इट इज अ होल नंबर और अ फ्रैक्शनल नंबर। ओके, फ्रैक्शन भी में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 माइनस 1 2 3 एंड 1/2 1/3 इस तरह से। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे आगे a raised to x के बाद हमारे पास है log x। सो log x का डेरिवेटिव 1/x आता है। log x का डेरिवेटिव 1/x,
और आप इस तरह से ध्यान में रखो कि 1/x अगर फंक्शन रहेगा y का, तो 1/x का डेरिवेटिव आएगा -1/x²। ओके, देन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है √x। √x का डेरिवेटिव आता है 1/2√x। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखे हैं, चाहे तो आप इनको ऐसे टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने इनको टेबुलर फॉर्म इनका मैंने बनाया है, आप भी इसको साथ में लिख लो। ठीक, एक बार इसको दूसरे मेथड से भी देखते हैं। इसको लिखने का और एक मेथड है। देखो, जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। x का डेरिवेटिव 1 आता है, x⁻n का डेरिवेटिव n(x⁻n−1), कांस्टेंट का 0 एंड सो ऑन। इसको लिखने का और एक मेथड है, ये देखो, x का डेरिवेटिव 1 आता है, राइट? द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, so this formula can also be written as the derivative of x with respect to x is 1. ओके, तो ये जो x है इसको आप ब्रैकेट के इनसाइड लिखो, इनसाइड द ब्रैकेट, और उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि डेरिवेटिव का ऑपरेटर जो है d/dx ही अप्लाई करो। ओके, सो x को आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया, इसको आप एक ऑपरेटर की तरह समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम 4 को स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। उसी तरह से x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। यानी कि x को हमने एक ऑपरेटर ऑपरेट किया, कौन सा? डेरिवेटिव ऑपरेटर, और उसका डेरिवेटिव कितना आया? 1 आया। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला, x⁻n का डेरिवेटिव n(x⁻n−1) आता है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। यू कैन राइट द डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n is the derivative of x⁻n is n(x⁻n−1). okay, so we will write these formulae once again, and we will end this session very fast. Please, you should write these formulae at least twice. Please write the formulae at least twice, so that you can learn the formulae. okay, आपको ये फॉर्मूले तभी लर्न होंगे जब आप इसको 2 बार अलग से लिखेंगे। एक बार तो आप ये इस फॉर्मेट में लिख लो, y और dy/dx, दूसरा आप इस फॉर्मेट में लिख लो। ओके, तो d/dx ऑफ कांस्टेंट नंबर कितना आएगा? 0। देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। द डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x। ओके, द नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x। the derivative of tan x is sec square x। the derivative of cot x is minus cosec square x। the derivative of sec x is sec x into tan x, and the derivative of cosec x is minus cosec x into cot x। okay, so these are the 6 trigonometric functions, and we have discussed and we have write the formulae। हमने उनके फॉर्मूले को लिखे हैं, कौन से? डेरिवेटिव के। so these are the 6 derivatives of trigonometric functions। okay, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूले आते हैं, जैसा कि d/dx ऑफ e raised to x। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही आता है। देन उसके बाद d/dx ऑफ a raised to x।
ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, देन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आता है 1/x, एंड देन उसके बाद 1/x का अगर डेरिवेटिव हम देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x²। एक लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो आएगा वो 1/2√x होगा। ठीक है, तो मैंने आपको 14 फॉर्मूले बता दिए हैं, ये बेसिक फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के। अगेन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इसको छोड़कर एक्स्ट्रा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी अवेलेबल है, यानी कि आपको जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बताए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसी तरह से साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये फॉर्मूले भी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, या पहले आप आज के लेक्चर में बेसिक 14 फॉर्मूले को लर्न कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के फॉर्मूले देखेंगे। पहले ही लेक्चर में अगर आप सब भी फॉर्मूले कर लेते हो तो अच्छी बात है, बट बहुत नए स्टूडेंट्स, मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ जो डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, और अगर जिनको डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पता है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, फॉर्मूले लर्न करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गए बेसिक फॉर्मूले। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है डिफरेंशिएशन में। तो हम इसमें व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या, व्हाई इट इज नेसेसरी, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स 11th में हो गए हैं। अब 12th में आपको सिर्फ फॉर्मूले पर फोकस करना है। अगर आपको अगेन वो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए 11th का, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 12th के सिलेबस को फोकस करेंगे। We will finish the syllabus given in 12th standard first. We will finish the syllabus of your differentiation of 12th first. Then after finishing the chapter, we will go through or we will revise the syllabus given in 11th standard. Okay, हम रिवाइज 11th स्टैंडर्ड का बाद में भी कर सकते हैं। तो हम पहले प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आना चाहिए मैथ्स में। ओके, तो हमारा आज का प्रॉब्लम सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, और आपको फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन रहेगा, और आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। आपको बस उस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा, differentiate the following functions with respect to x. Differentiate the following functions with respect to x. Number 1, y is equals to y equals to sin x plus tan x minus log x plus e raised to x. ओके, ये आपका पहला फंक्शन है आज का, sin x plus tan x माइनस log x plus e raised to x. ओके, तो ये बहुत आसान है, आपको बस फॉर्मूले यूज करने हैं और इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन इस तरह से आएगा। द सॉल्यूशन इज, देखो आपको पहले ये पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी एज इट इज। y इज इक्वल टू sin x प्लस tan x माइनस log x प्लस e raised to x। देन अगले स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x।
ये स्टेप लिखने के बाद आप y को डिफरेंशिएट करेंगे। y को डिफरेंशिएट करना मतलब y को d बाय dx अप्लाई करना। सो y का डेरिवेटिव हमेशा dy बाय dx आएगा। ओके, द डेरिवेटिव ऑफ y इज ऑलवेज dy बाय dx। एंड देन डिफरेंशिएट करना मीन्स अप्लाई करना d बाय dx। तो आप अभी ये d बाय dx हर एक टर्म को अप्लाई करेंगे जो राइट साइड है। पहला टर्म है sin x, so we will write d by dx of sin x, then plus d by dx of tan x, उसके बाद आएगा माइनस d by dx of log x, फिर आएगा प्लस d by dx of e raised to x। so basically डिफरेंशिएट करना यानी d by dx अप्लाई करना लेफ्ट साइड एंड राइट साइड throughout the equation to all the terms। now left side dy by dx as it is रहेगा, लेफ्ट साइड dy by dx as it is रहेगा, और sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x, बिकॉज हमको हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है। बस आपको अगर आज फॉर्मूली लर्न हो गए फर्स्ट लेक्चर में तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका मैथ्स होने वाला है आज का लेक्चर। तो देखो हमको पता है, अभी हमने फॉर्मूले किए थे, ये d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आता है, cos x आता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है, देन उसके बाद e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x आता है, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x आता है, राइट। तो ये फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बस यही आपको, इतना ही आपको इस प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। तो sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x प्लस tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x माइनस log x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x एंड लास्ट e रेस टू x का डेरिवेटिव आता है e रेस टू x। दैट दिस इज इट, दिस इज योर आंसर। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा डिफरेंशिएशन का। इतना आसान है, ठीक है, बस आपको फॉर्मूली लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो ये पहला बेसिक सम था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स का जो लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल करने वाला हूँ। दैट इज आपको आहिस्ता आहिस्ता टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगे, बट आप थोड़ा पेशेंस रखकर इन बेसिक प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आगे आगे डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, तो सेकेंड प्रॉब्लम है आज का इन टुडेज लेक्चर। द सेकेंड प्रॉब्लम इज y is equal to sin x minus cos x minus a raised to x minus 1 upon x। तो ऊपर की क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों टाइप के टर्म्स थे, यहाँ पे माइनस वाले टर्म ज्यादा है, साइन एक्स को प्लस की क्वांटिटी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है, बस आपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूले बस यूज करना है। पहले तो इक्वेशन फिर से लिख लो, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ए रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखो ये जो माइनस के जो साइन वाले टर्म्स हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप काफी यहाँ पे केयरफुली जाओ। यहाँ पे माइनस का साइन जो आता है जिससे कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं देखो आपको बताता हूँ। देखो क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, करेक्ट। डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x। ओके, तो हमने सबको डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, करेक्ट। अब आपको बस सभी के फॉर्मूले लिखना है। ओके, सभी डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। तो sin x का डेरिवेटिव आता है cos x। ये देखो माइनस का साइन एज इट इज रखो। अब आप बताओ कि cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला शीट अवेलेबल है, हमको पता है। देखो ये फॉर्मूली शीट में हमने cos x का डेरिवेटिव लिखा है माइनस साइन x, राइट। तो हम यहाँ पे
cos x का डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस साइन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखो। देखो बाहर की जो माइनस साइन है वो एज इट इज रहेगी, और ये एक्स्ट्रा माइनस साइन क्यों आई? बिकॉज cos x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला माइनस साइन x है। ओके, तो आपने जब भी cos x का डेरिवेटिव लिखना है ब्रैकेट में लिखना है, सो दैट आपको बाहर की माइनस साइन और फॉर्मूले की माइनस साइन में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? so there are two negative signs in multiply with each other. We will simplify them in the next step. ओके, पहले आगे देख लो आप। माइनस का साइन एज इट इज, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ओके, then minus will remain as it is. Now what is the derivative of 1 by x? The standard formula of 1 by x is, the standard derivative of 1 by x is minus 1 by x square. Okay, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, बिकॉज द स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यू ऑल नो दैट। अभी अभी हमने फॉर्मूले लिखे हैं। तो देयरफॉर dy by dx का फाइनल आंसर इस तरह से आएगा, cos x will remain as it is, this minus and the minus inside the bracket becomes plus sin x, then there is negative sign is present to the third term, it will remain negative, ये नेगेटिव ही रहेगा, अंदर कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, माइनस ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए एज इट इज आएगा, लास्ट टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यही आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थर्ड। अब थर्ड प्रॉब्लम में मैं पावर ऐसा फंक्शन लेता हूं जिसमें आपको x के पावर्स मिलेंगे, तो थोड़ा ट्रिकी रहेगा। एंड देन ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट बिगिन करे मैथमेटिक्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वन। तो थर्ड क्वेश्चन है y is equal to x raised to 5 plus x raised to 6 plus x raised to 10। ओके, बहुत सिंपल दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में y का वैल्यू रहेगा x रेस टू 5 प्लस x रेस टू 6 प्लस x रेस टू 10। इसको आपको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इतनी सिंपल क्वेश्चन इसलिए हैं बिकॉज ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक लेक्चर है, आपको 11th का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके लिए। ओके, डिफरेंशिएट करने पर लेफ्ट साइड क्या आएगा, dy बाय dx, राइट साइड आएगा d बाय dx ऑफ x रेस टू 5 प्लस d बाय dx ऑफ x रेस टू 6 प्लस d बाय dx ऑफ x रेस टू 10। ओके, अब मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए इस यहाँ पे मैं कुछ रीजन लिखना चाह रहा हूँ, और रीजन मैं बॉक्स में लिखूंगा। देखो हमारे पास जो सेकेंड फॉर्मूला अवेलेबल है, ओके, सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है वो है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, और उसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आता है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने आज डिस्कस किया है, और ये फॉर्मूला हमने आज फॉर्मूली शीट में नंबर 2 पर देखा है। ओके, ये ट्वाइस फॉर्मूला हमने इसको लिखा है, ट्वाइस लिखा है, इसको 2 बार लिखा है, अब ये हमने तीसरी बार लिखा। ठीक है ना? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन कितना आना चाहिए, n x रेस टू n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 7 होगा, तो पहले आप ये जो पावर है x का पावर, वो आप पहले सामने की तरफ लिखेंगे मल्टीप्लाई में, देन x का पावर एक डिजिट से कम कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 7 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू 7 माइनस वन, दैट इज आंसर आएगा 7x रेस टू 6। करेक्ट? तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली हमारा इस क्वेश्चन, हमारा जो ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये देखो, तो हमको अब इस स्टेप के बाद का स्टेप यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस स्टेप के बाद का स्टेप हमको यहाँ पे करना है। अगर हमको x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव चाहिए तो x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव आएगा 5x रेज़ टू 4। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपने क्या करना है, x का जो पावर है वो सामने की तरफ लाना है, मल्टीप्लाई करना है x से, और x का पावर एक डिजिट से कम करना है। ओके, प्लस x रेज़ टू 6 का डेरिवेटिव आएगा 6x रेज़ टू 5 प्लस x रेज़ टू 10 का डिफरेंशिएशन आएगा 10x रेज़ टू 9। तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं।